नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 6th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे हम 5th इंडिया दैट इज भारत। इन इंडिया एट ए वेरी अर्ली टाइम द spiritual and cultural unity was made complete and become the very stuff of the life of all this great surge of humanity between the Himalayas and the two seas. Shri Aurobindo. इंडिया दैट इज भारत। भारत में बहुत पहले ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता पूर्ण रूप हो चुकी थी और यह हिमालय तथा दो समुद्रों के बीच मानवता की महान लहर के जीवन का आधार बन गई थी। A scene from rural India about 2300 years ago, north gate of the great Sanchi Stupa. The big questions: how do we define India? What were the ancient name for India? लगभग 2300 ईसा पूर्व ग्रामीण भारत का एक दृश्य, महान सांची स्तूपा का उत्तरी द्वार। हम भारत को कैसे परिभाषित करते हैं? भारत के प्राचीन नाम क्या थे? Today, the India we know is a modern nation with defined borders, defined states, and a known population. However, it was very different 1500 years ago, 2000 years ago, or even 5000 years ago. This region of the world, which we often call the Indian subcontinent, has had many different names and shifting boundaries. We can learn about India's past and evolution from many different sources. Let us explore. आज हम जिस भारत को जानते हैं वह एक आधुनिक राष्ट्र है जिसकी सीमाएं, राज्य और जनसंख्या निर्धारित है। हालांकि 500 साल पहले, 2000 साल पहले या तक कि 5000 साल पहले बहुत अलग था। दुनिया के इस क्षेत्र जिसे हम अक्सर भारत उपमहाद्वीप कहते हैं के कई अलग अलग नाम और बदलती सीमाएं रही हैं। हम भारत के अतीत और विकास के बारे में कई अलग अलग स्रोतों से जान सकते हैं। आइए जानें। Think about it. Consider the physical map of the Indian subcontinent at the start of the chapter. What are its natural boundaries that you can make out? अध्याय की शुरुआत में भारतीय महाद्वीप के भौतिक मानचित्र पर विचार करें। इसकी प्रकृति सीमाएं क्या हैं जिन्हें आप पहचान सकते हैं? In the course of history, India has been called by many names, both by its inhabitants and the visitors from outside. These names come to us from ancient texts, accounts of travelers and pilgrims, and inscriptions. इतिहास के दौरान भारत को कई नामों से पुकारा गया, इसके निवासियों और बाहर से आने वाले पर्यटकों द्वारा। ये नाम हमें प्राचीन ग्रंथों, यात्राओं और तीर्थ यात्रियों तथा शिलालेखों से मिले हैं। How Indians named India? The Rig Veda is India's most ancient text, as we will see in chapter 7. It is several thousands years old. It gives the northwest region
of subcontinent. The name Sapta Sindhava, that is the land of seven rivers. The word Sindhava comes from Sindhu, which refers to the Hindus river, or at times to a river in general. भारतीयों ने भारत का नाम कैसे रखा? ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जैसा कि हम अध्याय 7 में देखेंगे, यह कई हजार साल पुराना है। यह उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को सप्त सिंधु नाम देता है, यानी 7 नदियां की भूमि। सिंधी शब्द सिंधु से आया है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी या कभी कभी सामान्य रूप से एक नदी। मूविंग ऑन इन टाइम, we see names from other part of India appear in the literature. The Mahabharata is one of the India's most famous texts. We read about it in the theme our cultural heritage and knowledge traditions. Interestingly, it lists many regions such as Kashmira, more or less today's Kashmir, Kurukshetra, part of Haryana today, Vanga, part of Bengal, Prayag, Jyotisha, roughly today's Assam, Kacha, today's Kutch, Kerala, more or less today's Kerala, and so on. समय के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि साहित्य में भारत के अन्य भागों के नाम भी दिखाई देते हैं। महाभारत भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। हम इसके बारे में हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपराएं विषय में पढ़ते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें कई क्षेत्रों की सूची दी गई है, जैसे कि कश्मीर, लगभग आज का कश्मीर, कुरुक्षेत्र आज का हरियाणा का हिस्सा, वंगा बंगाल का हिस्सा, प्रयाग ज्योतिष लगभग आज का असम, कच्छ आज का कच्छ, केरल लगभग आज का केरल इत्यादि। लेट्स एक्सप्लोर। डू यू recognize the name of any regions? Give the map. List the ones that you have heard of. आइए ढूंढते हैं। क्या आप पृष्ठ 79 पर दिए गए मानचित्र में देखे गए किसी क्षेत्र के नाम पहचानते हैं? उन क्षेत्रों की सूची बनाइए जिनके बारे में आपने सुना है। But when do we come across a name for the entire Indian subcontinent? Because ancient Indian texts are difficult to date. This is not an easy question to answer. The Mahabharata used the terms Mahabharat, Varsha and Jambudvipa, and scholars generally agree that this long poem was written from a few centuries BCE onwards. लेकिन हमें पूरे भारत उपमहाद्वीप के लिए एक नाम कब मिलता है? चूँकि प्राचीन भारत ग्रंथों की तिथि निर्धारित करना कठिन है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। महाभारत में भारतवर्ष और जम्बूद्वीप शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और विद्वान आमतौर पर इस बात पर सहमत हैं कि यह लंबी कविता कुछ शताब्दियों ईसा पूर्व से लिखी गई थी।
The first terms Mahabharata Varsha clearly extend to the entire subcontinent, and the text includes the name of numerous rivers and peoples. Mahabharata means the country of the Mahabharata. Bharata is name that first appears in the Rig Veda, where it refers to one of the main Vedic groups of people. In later literatures, several kings named Bharata are mentioned. पहला शब्द महाभारत भारतवर्ष स्पष्ट रूप से पूरे महाद्वीप तक फैला हुआ है। और पाठ में कई नदियों और लोगों के नाम शामिल हैं। भारतवर्ष का अर्थ है भरतों का देश। भरत एक ऐसा नाम है जो पहले एक बार ऋग्वेद में आता है, जहाँ यह लोग कई मुख्य वैदिक समूहों में से एक को संदर्भित करता है। बाद के सत्य में भारत नाम के कई राजाओं का उल्लेख किया गया है। द सेकेंड टर्म्स Jambudwepa means the island of the fruit of the jamun tree. This is indeed a common tree native to India, also called Jambul tree, Malabar plum tree, etc. Jambudwepa come to mean the Indian subcontinent. दूसरा शब्द जम्बूद्वीप का अर्थ यह है जामुन वृक्ष के फल का द्वीप। यह वास्तव में भारत का एक आम पेड़ है जिसे जाम्बुला वृक्ष, मालाबार बेर वृक्ष आदि भी कहा जाता है। जम्बूद्वीप का अर्थ भारतीय महाद्वीप को हो गया। Its fact, we get a good clue from an Indian empire. His name is Ashoka and we will meet him later. For now, we can take his date to be about 250 BC. As we will see, he left us many inspirations. In one of them, he used the same. दरअसल हमें एक भारतीय सम्राट से एक अच्छा सुराग मिलता है। उसका अशोक है जो, और हम उससे बाद में मिलेंगे। अभी के लिए हम उसकी तिथि लगभग 250 ईसा पूर्व मान सकते हैं। जैसा कि हम देखेंगे, हमने कई शिलालेख छोड़ते हैं, उनमें से एक में उसने उसी का उपयोग किया है। Name Jambudvipa to describe the whole of India, which at the time included what is today Bangladesh, Pakistan, as well as part of Afghanistan. जम्बूद्वीपा नाम पूरे भारत को दर्शाता था, जिसमें उस समय आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। A few centuries later, Bharata became the name generally used for the Indian subcontinent. For instance, in an ancient text called the Vishnu Purana, we read. कुछ शताब्दियों बाद भारतीय उपमहाद्वीप के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाम बन गया। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण नामक एक प्राचीन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, उत्तराम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिण वृक्ष तद भारत नाम वह। The country that lies north of the oceans and south of the snowy mountains is called Bharata.
देश जो समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पर्वतों के दक्षिण में स्थित है उसे भारत कहते हैं। दिस नेम भारता remains in use even today. In North India, it is generally written as Bharat, while in the South India it is often Bhartham. यह नाम भारत के नाम से ही प्रचलित है। उत्तर भारत में इसे आज भी भारत लिखा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे अक्सर भारतम लिखा जाता है। Think about it. Have you in identified the snowy mountains? Do you think this brief description of Bharata is correct? क्या आपने बर्फीले पहाड़ों की पहचान की है? क्या आपको लगता है कि भारत का यह संक्षिप्त वर्णन सही है? It is interesting to note that different parts of the country adopted a similar definition for India. For instance, a poem of ancient Tamil lecturer from about 2000 years ago, Persis, a king whose name is known from Cape Kumari, it in the south, from the great mountain in the north, from the oceans on the east and on the west. You can now recognize the great mountain in the north, and it should not be difficult to identify Cape Kumari. It looks like ancient Indians knew through geography well. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि देश के विभिन्न हिस्सों ने भारत के लिए एक समान परिभाषा अपनाई। उदाहरण के लिए, लगभग 2000 साल पहले के प्राचीन तमिल साहित्य की एक कविता में एक राजा की प्रशंसा की गई है, जिसका नाम दक्षिण में कैप कुमारी से, उत्तर में महान पर्वत से, पूर्व और पश्चिम में महान सागरों से जाना जाता है। अब आप उत्तर में महान पर्वत को पहचान सकते हैं और कैप कुमारी को पहचानना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि प्राचीन भारत अपने भूगोल को अच्छी तरह से जानते हैं। Don't miss out. The Indian Constitution, which was first written in English, used the paras India, that is Bharat, right at the beginning. Similarly, the Hindi version of the Constitution mentioned the same as Bharat अर्थात इंडिया। चूके नहीं, भारतीय संविधान जो पहले बार अंग्रेजों में लिखा गया था उसे शुरू में ही इंडिया दैट इज भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह संविधान के हिंदी संरक्षण में भी इसे भारत अर्थ इंडिया के रूप में उल्लेखित किया गया है। Let's explore in this reproduction of the first page of the original constitutions of India in figure 5.5. Can you make out the paras India that is Bharat? आइए ढूंढते हैं। चित्र जो है 5.5 पृष्ठ 82 में भारत के मूल संविधान के प्रथम पृष्ठ की इस प्रकृति में क्या आप इंडिया दैट इज भारत वाक्यांश को पहचान सकते हैं? How foreigners named India. The first foreigners to mention India were the Persians, the ancient inhabitants of Iran. In the 6th century BCE, a Persian empire launched a military campaign and gained control of the region of the Indus River, which, as we saw, was earlier called Sindhu. So it is
No surprise that in their earliest record and stone inscriptions, the peasants referred to India as Hind, Hindu or Hindu, which are adaptations in their language of Sindhu. Note that in ancient Persian, Hindu is a purely geographical term. It does not refer here to the Hindu region. विदेशियों ने भारत का नाम कैसे रखा? भारत का उल्लेख करने वाले पहले विदेशी ईरान के प्राचीन निवासी फ्रांसीसी थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक फ्रांसीसी स्मार्ट ने एक सैन्य अभियान शुरू किया और सिंधु नदी के क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसे जैसा कि हमने देखा पहले सिंधु कहा जाता था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने शुरुआती अभिलेखों और पत्थर के शिलालेखों में फ्रांसीसियों ने भारत को हिंदू या हिंदू के रूप में संदर्भित किया है, जो उनकी भाषा सिंधु का रूपांतरण है। ध्यान दें कि प्राचीन फ्रांसीसी में हिंदू एक विशुद्ध भौगोलिक शब्द है। यहाँ इसका मतलब हिंदू धर्म नहीं है। Based on these reasons, sources, the ancient Greeks named the region Indoi or Indak. They dropped the entitled letter H of Hindu because this letter did not exist in their Greek language. इन फ्रांसीसी स्रोतों के आधार पर प्राचीन यूनानियों ने इस क्षेत्र का नाम इंडोई या इंडेक रखा। उन्होंने हिंदू के शुरुआती अक्षर है को हटा दिया क्योंकि यह अक्षर उनकी ग्रीक भाषा में मौजूद नहीं था। सिंधु, हिंदू, इंडोस, इंडेक. The ancient Chinese also interacted with India in several texts. They refer to India as Yintu or Yindu. These words also originally comes from Sindhu in the following manner: Siddhu, Hindu, Hindu, Yindu. सिद्धू, हिंदू, इंडोई, इंडिके। प्राचीन चीनी लोग भी भारत के साथ बातचीत करते थे। कई ग्रंथों में वे भारत को यिंदू या हिंदू के नाम से संदर्भित करते थे। यह शब्द भी मूल रूप से सिंधु से आया है, जो इस प्रकार है: सिंधु, हिंदू, आइन्युडू, इंडू, यिंदू। Part 1: The Union and its Territory. India, that is Bharat, shall be a union of states. The states and the territories therefore shall be the states and their territories specified in parts A, B, C of the first schedule. The territory of India shall comprise the territories of the states. The territory specified in parts D of the first schedule and such other territories as may be acquired. Parliament may by law admit into the Union or establish new heads on such terms and conditions as it thinks fit. Parliament may by law form a new head by separation of territory from any head or by uniting two or more plates या heads है।
हेड्स तो नहीं मुझे प्लेट्स ऑफ पार्ट ऑफ प्लेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरीज टू ए पार्ट ऑफ एनी प्लेटे increase the area of by plate. The boundary of any plate, the name of any plate, provided that no bill for the purpose shall be introducing in the other House of Parliament exists on the recommendation by the President and unless where the proposal contained in the bill of effects. बाकी मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा अगर इसमें मुझे रीडिंग करने में कुछ समस्या हुई हो क्योंकि ये काफ़ी बारीक है तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको थोड़ा जो समझ में आया मुझे। संघ और उसका क्षेत्र, इंडिया अर्थात भारतीय राज्यों का एक संघ होगा। दाव और उसके रीजन पाल और ABC होंगे। भारत सेल कंप्रेसिंग की दलाली स्टैम्पिस की ट्राइबालजी चौथी अनुसूची के प्रेस्ट डी में सूचीबद्ध टर्मिनोलॉजी ऐसे अन्य श्रेणी सुयोजित किए जाएंगे। बेस्टामेट द्वारा लाख एग्नेस अनवे पर स्थापित हो सकते हैं जैसा उचित समझे ब्रोम और कवर को हिलाएं। किसी राज्य से राज्य को अलग करके या किसी राज्य को हिस्सा होने पर प्रतिबंध लगाया गया एक राजधानी में अध्यक्षता की हम प्रस्ताव के लिए विधायक को राष्ट्रपति और मीटर के सिफारिश के अलावा किसी भी समय पेश किया जाना चाहिए जहां विधेयक में नियत तैयार की पेशकश की जाती है। एक्सोजन, don't miss out, Exogen formerly split Huan, Taesong, Husang, Taesong, etc. traveled from China to India in the 7th century CE. He visited many parts of India, met scholars, collected Buddhist texts, and returned to China after 17 years. There, he translated the manuscripts he took back with him from Sanskrit into Chinese. Several other Chinese scholars visit India over the centuries. चूँकि नहीं हैन क्यांग जिसे पहले हैंग क्यांग होन क्यांग आदि के नाम से जाना जाता था ने 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीन से भारत की यात्रा की थी। उन्होंने भारत के कई हिस्सों का दौरा किया, विद्वानों से मुलाकात की, बौद्ध ग्रंथों का संग्रह किया और 17 साल बाद चीन वापस लौटे। वहाँ उन्होंने अपने साथ लाए गए पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया। कई अन्य चीनी विद्वानों ने नदियों के दौरान भारत का दौरा किया। Another Chinese word also derived from Sindhu was Tenju about, but this word could also be understood as heavenly master. This reflected the respect the ancient Chinese had for India as the land of the Buddha. सिंधु से निकाला एक और चीनी शब्द तियानजू था, लेकिन इस शब्द को स्वगृह स्वामी के रूप में भी समझा जा सकता है। यह प्राचीन चीन लोगों के मन से में बुद्ध की भूमि के रूप में भी भारत के प्रति सम्मान को दर्शाता है। You are probably quite familiar with a more recent term, Hindustan, but you may not know that it was first used in a prison inscription some 1800 years ago. Later on, this became the terms used by most invaders of India to describe the Indian subcontinent.
कॉन्टिनेंट्स। आप शायद हाल ही में प्रचलित शब्द हिंदुस्तान से अच्छी तरह परिचित होंगे, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता होगा कि इसका पहली बार इस्तेमाल लगभग 1800 साल पहले एक फ्रांसीसी शिलालेख में किया गया था। बाद में यह शब्द भारत के अधिकांश आक्रमणकारियों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप वर्ण करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। Before we move on, India is an ancient land which has had many names in the course of its history. The names given by the ancient inhabitants of India include Jambudvipa and Bharat. The latter became widespread in time, and is the name of India is most Indian language. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, भारत एक प्राचीन भूमि है जिसके भारत में कई नाम रहे हैं। भारत के प्राचीन निवासियों द्वारा दिए गए नामों में जम्बूद्वीप और भारत शामिल है। बाद वाला नाम समय के साथ व्यापक हो गया है। अधिकांश भारतीय भाषाओं में भारत का नाम है। Foreign visitors to or invaders of India mostly adopted names derived from the Sindhu or Indus River. This resulted in names like Hindu, Hindus, and eventually India. भारत अपने वाले विदेशी पर्यटकों या आक्रमणकारियों ने अधिकतर सिंधु या इंडस नदी से व्युत्पन्न नाम अपनाए। इसके परिणामस्वरूप हिंदू, इंडोई और अंततः इंडिया जैसे नाम सामने आए। क्वेश्चन, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स। डिस्कस व्हाट could be the meaning of the questions at the start of the chapter. True or false? प्रश्न, गतिविधियों और परियोजनाएं। चर्चा करें कि अध्याय के प्रारंभ में दिए गए उद्धरण का क्या अर्थ हो सकता है। सत्य या असत्य। The Rig Veda describes the entire geography of India. ऋग्वेद में भारत के संपूर्ण भूगोल का वर्णन है। The Vishnu Purana describes the entire subcontinents. विष्णु पुराण में संपूर्ण उपमहाद्वीप का वर्णन है। In Ashoka's time, Jambudvipa included what is today India's part of Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. अशोका के समय में जम्बूद्वीपा में आज का भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। The Mahabharata lists many regions including Kashmir, Kutch and Kerala. महाभारत में कश्मीर, कच्छ और केरल सहित कई क्षेत्रों की सूची दी गई है। The terms Hindustan first appeared in a Greek inscriptions more than 2000 years ago. हिंदुस्तान शब्द पहली बार 2000 साल से भी पहले एक ग्रीक शिलालेख में दिखाई दिया था। In ancient regions, the word Hindu refers to the Hindus region. प्राचीन फ्रांसीसी में हिंदू शब्द का तात्पर्य हिंदू धर्म से है। Bharata is a name given to India by foreigner travelers. भारत विदेशियों यात्रियों द्वारा भारत को दिए गया नाम है। If you were born some 2000 years ago and had the chance to name our country, what
name or names might you have chosen and why? You use your imagination. अगर आप 2000 साल पहले पैदा हुए होते और आपको अपने देश का नाम रखने का मौका मिलता, तो आप कौन सा नाम चुनते और क्यों? अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। Why did people travel to India from various parts of the world in ancient times? What could be their motivations in undertaking such long journey? Hint: there could be an list for a 4 or 5 motivations. प्राचीन काल में लोग दुनिया के विभिन्न भागों से भारत क्यों आते थे? इतनी लंबी यात्राएं करने के पीछे उनकी क्या प्रेरणाएं हो सकती हैं? संकेत: कम से कम 4 या 5 प्रेरणाएं हो सकती हैं। आप इस चैप्टर को आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना अधिक हो सकता है इसको शेयर करें ताकि लोगों तक मुफ्त में शिक्षा मिल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।